of class 9th. I hope you are doing well and focusing on your studies. Like see, in the previous video we had already discussed about, we had started the chapter on the tissues. And we had differentiated that tissues will be a cluster of cells which will be functioning or performing a similar function. Okay? And the study of tissues is known as histology. We have to learn about this term. It is histology. Okay? This will be the study of tissues. We were discussing that there were we differentiate tissues on the basis of the plants and the animals. We had just began with the plant tissues, in which we learnt about that plant tissues are differentiated on the basis of division of cells. Like first of all, there will be the meristematic tissues, which divides at a much faster rate. And after, when the meristematic tissues becomes matured, when the process of division gets retarded, then these meristematic tissues are converted into the permanent type of tissues. So let us just begin today with the different type of meristematic tissues, where they are found, what are the functions of them. Let us see. So first of all, we will be differentiating today about the meristematic tissues. So just for revision, I had told you that meristematic tissues will be those kind of tissues in which there will be a very rapid cell division. Okay? So the process of cell division will be very rapidly taking place in this kind of tissues, and hence they are also named as growth tissues. Okay? So we can also name the meristematic tissues as the growth tissues. So now meristematic tissue will be first of all differentiated into two types. That is the primary meristematic tissue. I am writing MT for the short form of meristematic tissue. You understand. So meristematic tissue will be first differentiated into primary meristematic tissue, and we will be having the secondary meristematic tissue. Clear? ठीक? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे हम लोग ना? सपोज मैं आपको पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि एक सीड है, एक सीड से सबसे पहले उसके प्लेम्यूल और रेडिकल निकल के आएंगे. रेडिकल विल फॉर्म द रूट एंड द प्लेम्यूल विल बी मूविंग टूवर्ड्स एंड इट विल बी फॉर्मिंग द शूट. तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर सीड से जो एम्ब्रायो धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है इनटू अ सीडलिंग, उसके अंदर भरपूर मात्रा में जो टिश्यूज होंगे, दे विल बी कॉन्स्टेंटली एट अ हायर डिविजन रेट. तो देयरफॉर all the tissues which are mainly found in the growing parts of a plant, they will be termed as meristematic tissue. Okay? And the first tissues which will be growing in a plant, they will be known as the primary meristematic tissue, which we will be furthering divide into two parts. That is, one will be on the basis of their presence, their location, they are differentiated into apical meristematic tissue and the intercalary meristematic tissue. I'll be just explaining this with the help of a diagram to just show you the location of this kind of tissues in a plant. Okay? And after primary meristematic tissue, then there will be the requirement of the secondary meristematic tissue, which we will be saying as the lateral meristematic tissue. Clear? Okay? So, let us see with the diagram where this type of tissues are present. Suppose this is the tip of a shoot
which is extending to form the leaves or the branches. So let us suppose this is a shoot. We can have this as the root also. So this portion over here, this is actually the vertex or the tip of the shoot. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग टिप ऑफ द शूट बोल सकते हैं. ठीक वैसे ही अगर ये आपका एक ब्रांच जैसा या आपका लीफ जैसा निकल के आ रहा है, तो इसका भी एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग उसके वर्टेक्स बोल सकते हैं, उसके टिप बोल सकते हैं. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टिप के अंदर होते हैं, इस टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम लोग नाम देते हैं द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्लियर है? तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होगा? न दे विल बी प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द शूट एज वेल एज रूट. ठीक है? शूट और रूट के टिप में पाए जाने वाले सेल्स जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहा है, उनके सब का काम क्या है? डिवीजन में ग्रोथ करना. ठीक, ताकि इस जो स्टेम है, इस स्टेम का लेंथ बढ़े. क्लियर है? तो ये इसका फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड द शूट. दोनों का ही लेंथ को इंक्रीज करेगा. ठीक, इस टाइप ऑफ पर्टिकुलर. तो प्रेजेंस कहां पे होगा? एट द टिप ऑफ द शूट एंड द रूट. ये हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा कि कहां पर ये आपके एक्चुअली प्रेजेंट होंगे. तो उन टाइप ऑफ टिश्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द एपेक्स. एपिकल कहां से आया? ये शब्द आया है फ्रॉम द एपेक्स. और एपेक्स का मतलब क्या होता है? चोटी, वर्टेक्स, टिप. क्लियर? तो उसके ऊपर नाम हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कोई दिक्कत? क्लियर? अब इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा. अगर मैं एक कोई भी ब्रांच को ले लू, सपोज करिए दिस इज द शूट एंड दिस इज योर द सॉयल जहां से आपके रूट्स निकल के आ रहे हैं. ठीक, तो इफ आई टॉक अबाउट द स्टेम और द शूट, हमें पता है कि डिफरेंट पॉइंट से आपके यहां पर लीव्स निकल के आएंगे या ब्रांच निकल के आएंगे, है कि नहीं? हो सकता है दोनों तरफ ही हो, या हो सकता है कोई एक ही तरफ आपके निकल के आए, बट दे विल बी ऑल अराइजिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्टेम. तो इस पॉइंट को हम लोग नाम क्या देंगे? वी विल बी टेलिंग देम टू बी द नोड. क्लियर? ठीक, तो अ स्टेम विल बी हैविंग अ पॉइंट, जिस पॉइंट को बोलूंगा नोड. और नोड क्या डिनोट करता है ना? ये वो पॉइंट होगा शूट के ऊपर जहां से एक शूट का एक्सियल ब्रांच या उसका लीव या उसके फ्लावरिंग ब्रांच निकल के आएगा. कोई दिक्कत? ठीक, तो ऐसे अगर दो नोड्स ले लेता हूं मैं, तो इन दो नोडों के बीच का जो जगह है, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ठीक, तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग नाम देंगे इंटरनोड. द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स. ठीक, एंड इंटरनोड ये भी बताएगा हमें कि इस इंटरनोड पोजीशन में नो लीफ, नो ब्रांच विल बी कमिंग आउट. ठीक, तो दो नोड होगा, तो दो नोड के बीच का जो जगह होगा, उस जगह को हम लोग नाम देंगे इंटरनोड. अब हमें इंटर कैलरी समझने में आसान होगा. इंटर कैलरी क्या बोल रहा है ना? इंटर कैलरी कहां से निकलेगा ना? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जनरली दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ
द लीफ और द बेस ऑफ द ब्रांच, ठीक, एट द इंटरनोड पोजीशन, एट द इंटरनोड पोजीशन। तो ऑब्वियसली देखिए ये एक नोड हो जाएगा, ये दूसरा नोड हो जाएगा, ये तीसरा नोड हो जाएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दिस विल बी द इंटरनोड। तो यहां पर जो आपके नोडल पोजीशन और इंटरनोडल पोजीशन में जो टाइप ऑफ टिश्यूज मिलेगा, इस टाइप ऑफ टिश्यूज को हम लोग नाम क्या देंगे ना, इस टाइप ऑफ टिश्यूज को हम लोग नाम देंगे द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? इनका मेन काम क्या होगा ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन जो फंक्शन होगा, दैट विल, इट विल बी इंक्रीजिंग द लेंथ बिटवीन द टू नोड्स, या इंक्रीज करता है द लेंथ, सॉरी GTH, बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के बीच का जो जगह है, उस जगह को ये उसका लेंथ इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना, जो टिश्यूज कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हुए रहेगा, और ये पाए भी कहां पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाएंगे जो सबसे ज्यादा डिवीजन होगा, जहां पे, ठीक, जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफ द प्लांट होगा, वहां पर पाया जाएगा ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एपिकल एंड इंटरकैलरी एंड लैटरल। क्लियर? इंटरकैलरी और एपिकल ये दोनों जो है वो सबसे पहले निकल के आएगा। एक अगर मैं सीड की बात करूं तो सीड से जो प्लांट लिंग निकल के आएगा, उसके अंदर सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे उसको हम लोग नाम देंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? ठीक। और ये दोनों जब लगभग बढ़ जाएगा, उसके बाद अब सपोज करिए ये आपका सीड था, इस सीड से आपका निकल के ये आपका प्लांट हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक, छोटे छोटे लीव्स निकल के आ रहे हैं। क्लियर? रूट नीचे निकल रहा है, तो अब धीरे धीरे ये प्लांट और बढ़ेगा। तो और बढ़ने से अब इसका भी तो थोड़ा मोटाई होना चाहिए। जब तक मोटापा नहीं होगा इस प्लांट के अंदर, तब तक वो कैसे करके सपोर्ट करेगा उसके सारे स्ट्रक्चर्स को। ठीक। तो प्राइमरी क्या होगा ना, प्राइमरी वही टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट जो इंक्रीज इन लेंथ करवाएगा। नोडल पोजीशन के इंक्रीज कराएगा कौन? इंटरकैलरी। ठीक। अब दोनों जब अच्छी तरह काम कर रहा है तो इंक्रीज इन द हाइट, इंक्रीज इन द प्लांट हाइट हो रहा है आपका। क्लियर? नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज द डायामीटर ऑफ द प्लांट। अब जो डायामीटर है वो भी धीरे धीरे चौड़ा होता चला जाएगा, एंड दैट टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज in the diameter of the girth, that type of a tissue is known as the lateral meristematic tissue. Clear है? तो lateral meristematic tissue का आपका काम क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा ना, it helps to increase the girth. क्या वर्ड है? It is known as girth, or increase in the diameter of the stem and the root. Clear है? To support the entire plant, तो आपके यहां पर ऐसे करके पूरा along the girth of the plant ये आपके धीरे धीरे अब चौड़ा होता चला जाएगा। मतलब lateral meristematic tissue will increase the girth of the plant's stem as well as the root. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़े एपिकल कहां पे होगा, टिप ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स। क्लियर? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट।
इंटर कैलरी कहां पर होगा ना, जो नोडल पोजीशन थे टू ये जो इंटर नोड है उस इंटर नोड के बीच दूरी को और बनाने के लिए, जो दो नोड के बीच आपका पहले था इतना जगह, आप धीरे धीरे वहां पे आपका इलोंगेशन होके हुए, एक नाम आप और याद रखिएगा, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स है वो लंबाई में भी बढ़ेगा, सिर्फ इंक्रीज इन नंबर्स तो नहीं करेगा बट वो लंबाई में भी बढ़ेगा, मतलब जो इलोंगेट होगा, पहले इतना ये दोनों जगह था दो नोड के बीच, अब वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया, मतलब इंटरनोडल पोजीशन आपका इंक्रीज हो गया हाइट पे। ठीक, और फाइनली आपका काम करेगा द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज नोन एज द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट विल बी हेल्पिंग टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम। कोई दिक्कत? ठीक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यू, जो किससे बनेगा, परमानेंट टिश्यू जो है वो भी बनेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद वो धीरे धीरे डिवाइड होना बंद कर देगा। तो चलिए देखते हैं अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं ना। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि परमानेंट टिश्यूज जो है, ये परमानेंट टिश्यूज बना किससे, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि बहुत ही ज्यादा डिवीजन कर रहे थे, जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद हो गया, उसका मेन काम क्या था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, डिवीजन में, तो जब वो डिवाइड होना बंद कर दिया तब वो धीरे धीरे मैच्योर होते हुए वो बन गया परमानेंट टिश्यूज। क्लियर? और परमानेंट टिश्यू बन के वो अलग अलग फंक्शन करने में जुड़ गए। क्लियर? ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि परमानेंट टिश्यू क्या है ना। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फेल टू डिवाइड, जब डिवाइड होना बंद हो गया, ठीक, तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गेट्स मैच्योर्ड, और मैच्योर होके बन गया क्या चीज ना, परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग कि परमानेंट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं ना। परमानेंट टिश्यूज जो है, बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, परमानेंट टिश्यू जो है उसको हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू। मैं वही पीटी लिख रहा हूं फॉर एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ परमानेंट टिश्यू, याद रखिएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Now on what basis we are saying that it is simple and this will be complex? सिंपल हम लोग बोलेंगे उसको जिसके अंदर सर टिश्यू है, तो टिश्यू किससे बनेगा, सेल से बनेगा। अच्छी तरह देखिए, टिश्यूज विल बी मेड अप ऑफ सेल्स, अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक, अगर यहां पर टिश्यू बनने में एक ही प्रकार के सेल्स से वो बन रहा है, मतलब ऑल द टिश्यूज विल बी मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, समझ में आया? सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोग किसको बोलेंगे ना, व्हेन द टिश्यूज आर सच दैट दे आर मेड अप ऑफ only one type of cell, then that type of tissues will be known as the simple permanent tissue. कोई दिक्कत? ठीक, और इसके बेसिस पे हम लोग इस टिश्यूज को तीन आकार में डिवाइड कर लेते हैं। दे आर नोन एज द, बहुत अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे आपको।
parenchyma, next will be collenchyma, and the last simple tissue will be the sclerenchyma. एक छोटा सा चीज आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप लिख रहे हो, क्योंकि देखो बायो के अंदर काफी सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेगा जो कि बिल्कुल सर से ऊपर से जाएगा, बट आपको एक एक टर्म को पकड़ के ना तो सिर्फ उसको समझना है, प्लस उसको अच्छी तरह याद रखना है उसके स्पेलिंग्स, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा तो ऑब्वियसली लिखने में भी दिक्कत हो सकता है उसके स्पेलिंग्स का। तो आपको मैं एक छोटा सा आपका मतलब एग्जाम्पल दूंगा जिस तरीके से आसानी से आप उसको याद रख सकते हो। आप कोई भी शब्द को, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो, आप कोई दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ते हो, अगर कोई भी आपका एक हार्ड वर्ड आ जाता है लंबा सा, तो क्या करना चाहिए, उसको तोड़ तोड़ के आप उसका प्रोनाउंसिएशन को याद रखिए और तब आपको बहुत आसानी से वो लिख भी आप पाइएगा। जैसे देखिए यहां पर पैरेनकाइमा कभी गलत नहीं हो सकता है, कोलेनकाइमा, स्क्ले SCLE स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये तीन हो गए किसके बेसिस पे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब पैरेनकाइमा टिश्यू जो होगा वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल से बने हुए रहेंगे, सिमिलर विथ कोलेनकाइमा एंड सिमिलर विथ द स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है, ठीक। ये हम लोग एक एक अभी डील करेंगे इस चार्ट के बाद। खाली आपको याद रखना है कि ये जो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा है, दे आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग टिश्यू, whereas the sclerenchyma is considered to be a dead tissue. आप बोलोगे कि डेड हो गया तो फिर हाउ इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? दिस इज प्लांट्स। और प्लांट्स एनिमल से कैसे अलग है ना? एनिमल्स को देखो, चाहे कुछ भी चेंज हो एनवायरमेंट के अंदर, वो अपने एनवायरमेंट को अपने मुताबिक चेंज कर सकता है। बारिश आया, वो भाग के किसी गुफा में चला गया, घर के अंदर रह गया, ठीक, किसी पेड़ के नीचे छुप गया, किसी गड्ढे के अंदर घुस गया, तो वो अपने आप को अलग अलग तरीके से बचाने की क्षमता रखता है। बट एक प्लांट जो होता है, चाहे बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, या बहुत आंधी आ जाए, या बहुत बारिश हो जाए, बहुत ठंड हो जाए, ना वो स्वेटर पहनता है, ना वो कहीं पर गर्म कुछ लेता है, वो वैसे के वैसे ही पूरा झेलता है जो भी नेचर के अंदर एनवायरनमेंट का चेंज होता है। मतलब उसको अपने आप एडप्ट करके अपने आप को और एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना पड़ता है जो कि आसानी से वो ये सारे टेम्परेचर डिफरेंसेस को झेल पाए, ठीक। तो ये जो एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, कहीं ना कहीं ये जो डेड टिश्यूज है, दे गिव देम एडिशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। क्लियर? हम लोग जब डील करेंगे स्क्लेरेनकाइमा से तो हम लोग एक एक देखेंगे कि किस किस के अंदर ये हो सकते हैं, ठीक। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। ना ऑब्वियसली आप अब तक समझ गए होंगे कि अगर सिंपल आपके सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल से बना हुआ रहेगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दिस विल बी मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ more than 2 type of cells, ठीक है। जब अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स जुड़ के फंक्शन एक ही चीज कर रहा है, उस टाइप ऑफ सेल आपका टिश्यूज को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा द जाइलेम एंड दूसरा हो जाएगा द फ्लोएम। क्लियर? और ये जाइलेम और फ्लोएम को मिला के दिस इज फ्लोएम, ठीक। सो ये दोनों को मिला के हो जाएगा मेरा
वास्क्यूलर बंडल्स। इसका भी हम लोग काम देखेंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हमें करना है टिल द स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर है? ठीक। तो देखिए, परमानेंट टिश्यू किससे बना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करना बंद कर देगा, ग्रोथ उसका पूरा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब वो अपने आप को बदल के और बना लेगा परमानेंट टिश्यू और अलग अलग फंक्शन करने में जुट जाएंगे। ठीक। परमानेंट टिश्यू ऑन द बेसिस एंड नेचर ऑफ द सेल टाइप दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द अदर विल बी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू विल बी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक। इट विल बी अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, बट सारे सेल्स को अलग अलग करके मैं देखूं तो दे विल बी मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ सेल। ठीक। तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, और वो अलग अलग जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विल बी मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स टू फॉर्म अ टिश्यू, बट ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो जुड़ के वो टिश्यू बना, सपोज करिए जाइलम विल बी मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, बट वो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जुड़ के जो जाइलम टिश्यू बना उसका काम एक ही होगा। क्लियर? तो फंक्शन सेम होगा, बट दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स टू फॉर्म अ टिश्यू। क्लियर? तो ये दो प्रकार के होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं वास्कुलर बंडल्स। क्लियर? ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विथ द पैरेन्काइमा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिश्यू, दैट इज पैरेन्काइमा। ना हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पैरेन्काइमा के अंदर याद रखना पड़ेगा, वो हम सबसे पहले देखते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर ये तो हमें पता चला कि दिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब जितने भी सेल्स होंगे इसके अंदर वो सारे के सारे एक ही टाइप के सेल्स होंगे। तो जितने भी सेल्स होंगे हमें याद रखना है, ऑल द सेल्स विल बी हैविंग अ थिन सेल वॉल। जो सेल वॉल होगा वो होगा थिन, एंड सेल वॉल के अंदर जो मटेरियल होगा वो मटेरियल होगा, द सेल वॉल विल बी कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज। किससे बना हुआ होगा? सेल वॉल। ना द सेल वॉल ऑफ द पैरेन्काइमाटोस टिश्यू विल बी कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज एंड दे विल बी हैविंग अ थिन सेल वॉल। पहला पॉइंट, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि ये जो आपके सेल्स है, दे विल बी हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है? इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट, ये जो सेल्स होंगे दे कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स। ये जो सेल्स होंगे दे कैन बी ओवल, दे कैन बी स्फेरिकल, ठीक, दे कैन बी सिलिंड्रिकल, कैसे भी आपके शेप्स हो सकते हैं। और ये सेल्स जब एक दूसरे में आपके कनेक्ट होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ intercellular spaces which will be there, मतलब intercellular spaces प्रेजेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार ना। सपोज करिए दिस इज अ सेल, ठीक, ये दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, तो ऐसे करके आपके कई सारे सेल्स, देखिए सब के आपके जो सेल वॉल है वो सेल वॉल बहुत ही आपका थिन है कंडीशन। तो ये अलग अलग जो आपके सेल्स दिख रहा है यहां पर, ये सारे इकट्ठा होके जब ज्वाइन होगा तब जो टिश्यू बन रहा है, दैट टिश्यू विच इज फॉर्मिंग, इट इज नोन एज पैरेन्काइमा। क्लियर? तो यहां पर जो सेल होगा, सेल का जो आपका सेल वॉल होगा, दैट विल बी थिन,
इट विल बी फुल्ली कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक। और दो सेलों के बीच जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा वो भी ज्यादा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? मतलब ज्यादा होने के मतलब ही है कि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे। क्लियर? ठीक। दे आर नॉट डेंसली प्रेजेंट, ठीक। अब इसके जो है हमें फंक्शंस देखना पड़ेगा, तो ये आपका डिनोट करता है द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस विच आर प्रेजेंट। फंक्शंस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसका होगा दैट विल बी दे एक्ट एज स्टोरेज, ठीक। तो ये स्टोरेज का इसका मेन फंक्शन होगा। क्या चीज स्टोर करेगा ना? जनरली इट स्टोर्स अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब आसानी से आपके पैरेन्काइमाटोस टिश्यू आपके स्टोर करके रखेगा। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द पैकेजिंग टिश्यूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैकेजिंग टिश्यू? बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे सकता हूं कि जब हम लोग घर शिफ्ट करते हैं, व्हेन वी शिफ्ट आवर रूम्स, तो हमें जितने भी आपके क्रूकरीज हो गया, कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उसको हमें ले जाने के लिए अच्छी तरह पैक करना पड़ता है। और पैकिंग के समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उस चीज को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग आइदर थर्मोकॉल या कुछ गत्ता वगैरह ये सब देके उसको अच्छी तरह पैक करते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में क्या रहता है पैकिंग करने के टाइम में कि वो चीज, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपका किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, ठीक। तो यहां पर भी जो आपके प्लांट पार्ट्स है, वो डेलिकेट प्लांट पार्ट्स को, जैसे कि लीफ हो गया, जैसे कि आपका कोई स्टेम हो गया, तो उस पार्ट को डैमेज होने से रोकने के लिए ये क्या करता है, एक पैकेजिंग टिश्यू करके उसके चारों तरफ बैठ जाता है और वो जो भी शॉक होगा, जो भी प्रेशर होगा, थ्रस्ट होगा, फोर्स होगा, वो सब अपने आप झेल लेंगे ये पैरेन्काइमाटोस टिश्यू। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्लियर? तीसरा जो सबसे ज्यादा वाइटल काम है वो है कि वो पैरेन्काइमा आपके टिश्यूज जो कुछ कुछ क्लोरोफिल कंटेन करते हैं ना, क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा। मैंने बोला बायो के अंदर आपको काफी सारे ऐसे हार्ड टर्म्स आएंगे, बट आपको उनसे घबराना नहीं है। आपको ईच एंड एवरी टर्म को अलग अलग बहुत अच्छी तरह उसके प्रोनाउंसिएशन सीखना है। प्रोनाउंसिएशन अगर सही होगा तो उसको आप अच्छी तरह उसके स्पेलिंग्स भी याद रख पाओगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा, इसको हम लोग नाम देंगे क्लोरेनकाइमा। क्या नाम देंगे हम लोग? इसको नाम देंगे हम लोग क्लोरेनकाइमा। क्लियर है? ठीक। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा, सबसे पूरा भरपूर मात्रा में आपके क्लोरोफिल उसके अंदर है। दे आर स्पेशली ग्रीन इन कलर, जो ज्यादातर कहां पे प्रेजेंट होंगे? द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीव्स हो गया, द ग्रीन शूट्स और द स्टेम्स हो गए, ठीक। तो उनके अंदर भरपूर मात्रा में आपके क्या मिलेगा? क्लोरेनकाइमा। So what is क्लोरेनकाइमा? It is a type of parenchyma tissue, ठीक। तो parenchyma which consists of chlorophyll, they are known as क्लोरेनकाइमा। याद रखिएगा, अभी हम लोग parenchyma के बाद देखेंगे कोलेनकाइमा, तो that is कोलेन and that is क्लोरेनकाइमा। तो दोनों टर्म अलग है, ध्यान से। ठीक वैसे ही जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ले सकता हूं मैं द वाटर लिली और द वाटर हायासिंथ, ठीक। और द बेस्ट एग्जांपल लोटस। लोटस के जो आपके पत्ते हैं वो देखना फ्लोट करते हुए रहते हैं, क्लियर। जो वाटर हायासिंथ है उसके आपके कर्ली लीव्स दे फ्लोट ऑन द वाटर, क्लियर। तो वो फ्लोटिंग के लिए उसको कौन प्रेशर दे रहा है? वो इतना हल्का कैसे हो रहा है कि वो आसानी से आपके फ्लोट करते हुए पानी के सरफेस में आपका रह सके ना। उस फ्लोटिंग के लिए उसके पास
ऐसे टाइप ऑफ पैरेनकाइमा है जिनके अंदर, मैंने बोला था पैरेनकाइमा के अंदर क्या रहेगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा। तो इस इंटरसेल्यूलर स्पेस में एयर फिल्ड कैविटीज हो जाते हैं। तो एयर फिल्ड कैविटी कंटेनिंग पैरेनकाइमा, क्या बोला मैंने, एयर फिल्ड कैविटी, ऐसे कैविटी पैरेनकाइमा के अंदर जो भरा हुआ रहेगा किससे, एयर से, उसको हम लोग नाम देंगे एरेनकाइमा। क्या नाम देंगे हम लोग, एरेनकाइमा। क्लियर है। और इस एरेनकाइमा सेल्स आपके सबसे ज्यादा जो ये टिश्यूज है कहां पर पाए जाते हैं ना, दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स। और एक्वेटिक प्लांट्स में इस टाइप ऑफ एरेनकाइमा होने के लिए ये क्या हेल्प करता है, दे हेल्प टू हैव बाउंसी। क्लास 9th में एक आपका चैप्टर आएगा जहां पे ग्रेविटेशन आप पढ़ोगे, वहीं पर ही आप देखोगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा जहां पे आप ये सोचोगे बाउंसी। बाउंसी मतलब ना, आप खुद सोचो एक बाल्टी है पानी से लेके, ठीक है, आप एक मग उसके अंदर अगर डालोगे तो ऑब्वियसली सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स जो उस मग को उस पानी के अंदर से जाने से रोकेगा, ठीक। तो वो जो अपवर्ड फोर्स है, उस अपवर्ड फोर्स को हम लोग नाम देंगे बाउंसी। क्लियर। तो जहां पे अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो चीज बाहर आके सरफेस में फ्लोट करेगा। क्लियर, ठीक है, वो हल्का हो जाएगा, वो फ्लोट करेगा। तो यहां पर जो आपके हल्का होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है इसके अंदर जो पैरेनकाइमा सेल्स होंगे, दे विल बी फिल्ड विथ एयर एंड हेंस दे विल बी मेड अप ऑफ एरेनकाइमा सेल्स which will provide them buoyancy and hence they will be help in floating on water। है कि नहीं, फ्लोट करने में मदद करेगा वाटर के ऊपर। क्लियर है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। पैरेनकाइमा हम लोग क्या देखे थे ना, ऐसे सेल्स जो बना हुआ है थिन सेल वॉल से, एक ही टाइप ऑफ सेल्स होंगे। अब उसके शेप अलग अलग हो सकते हैं, बट इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा और दो सेल के बीच देयर विल बी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट। क्लियर। फंक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका स्टोरेज फंक्शन होता है। ये न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि स्टार्च, ये सबको ये अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है और साथ साथ पानी को भी स्टोर कर सकता है, ठीक। इट फॉर्म्स अ पैकेजिंग टिश्यू। तो डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ये शॉक प्रूफ बना देता है, ये ऐसा एक प्रोटेक्शन इसको कवरिंग देता है, मतलब पैकेजिंग टिश्यू के हिसाब से ये काम करता है। अगर क्लोरोफिल है इसके अंदर तो हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा, मतलब जो भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ मेनली द क्लोरेनकाइमेटोस टिश्यू। जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसको अच्छी तरह बाउंसी देके ऊपर फ्लोट करवाने का काम भी रह जाता है पैरेनकाइमा, जिसके अंदर एयर फिल्ड कैविटी स्पेसेस होता है, जिसको हम लोग नाम देंगे एरेनकाइमा। कोई दिक्कत। क्लियर। तो ये हो गया आपका पैरेनकाइमा। अब चलते हैं कोलेनकाइमा के अंदर, विच इज, याद रखिएगा, दिस इज क्लोरेनकाइमा एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कोलेनकाइमा। चलिए देखते हैं। कोलेनकाइमा के अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो हमें पता चलना पड़ेगा कि ये जो कोलेनकाइमा है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पैरेनकाइमा। ना, कोलेनकाइमा के जो सेल वॉल होंगे, अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, पैरेनकाइमा के सेल वॉल कैसे है, बहुत थिन होंगे, ठीक, और वो किससे बने हुए रहेगा, सेल्यूलोज से। सेल वॉल जो कोलेनकाइमा का है वो बहुत ही ज्यादा थिक होगा, सबसे मेन डिफरेंस। और ये जो सेल वॉल है ये किस किस सब्सटेंस से बना हुआ रहेगा ना, दिस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज। एक नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज है जिसको हम लोग हेमीसेल्यूलोज बोलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट ऑफ द कंपोजिशन होगा जिसको हम लोग नाम देंगे पेक्टिन। क्लियर, ठीक। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। पैरेनकाइमा सेल्स बहुत ही सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जो सिर्फ और सिर्फ बनता है सेल्यूलोज से। बट जब हम लोग
कोलेनकाइमा की बात करते हैं, वो अलग अलग 3 टाइप के केमिकल से बनते हैं, एक सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, उसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा डेंस साइटोप्लाज्म से बना हुआ था और इंटर सेल्यूलर स्पेसेस था। बट इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इंटर सेल्यूलर स्पेसेस है, द इंटर सेल्यूलर स्पेसेस आर एब्सेंट। क्लियर। ठीक। इसके जो शेप होंगे, दिस शेप कैन बी पॉलीगोनल इन स्ट्रक्चर। ठीक। और जो सेल के आपके कॉर्नर्स होंगे, वो कॉर्नर्स हाईली थिक हो जाएंगे। दे विल बी हाईली थिकेंड। और किससे थिक होगा? बाय द एडिशन ऑफ पेक्टिन। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पॉलीगोनल है तो हम लोग कोई भी एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं। सपोज करिए दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक। तो ये जो आपके सेल वॉल होंगे, ये सेल वॉल हो जाएगा थिक सबसे पहले, सच दैट ये सेल वॉल क्यों थिक हो रहा है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ नॉट ओनली सेल्यूलोज बट रिच डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज along with the hemicellulose, the pectin। और जनरली इसके जो कॉर्नर्स होंगे, ये कॉर्नर्स बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेक्टिन लाइक केमिकल। ठीक है। किससे ये ज्यादा थिक होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो ये थिक होने के कारण आप खुद देखिए यहां पर कोई भी इंटर सेल्यूलर स्पेस अवेलेबल नहीं हो रहा है, मतलब इंटर सेल्यूलर स्पेस इज एब्सेंट। ठीक। तो इस एब्सेंट ऑफ इंटर सेल्यूलर स्पेस के वजह से ये जो कोलेनकाइमा आपके टिश्यूज है, ये प्लांट्स को क्या देता है? रिजिड बना देता है, मजबूत बना देता है। ठीक। क्लियर है। तो ये कहां कहां आपके कोलेनकाइमा प्रेजेंट होंगे? अगर मैं बोलूं पीटीओल ऑफ द लीफ, ये स्टेम होता है, यहां से जो आपका लीफ निकल के आएगा, ये जो पोर्शन जो लीफ को अटैच करके रखेगा द मेन स्टेम के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द पीटीओल। क्लियर। तो ये क्या है? बहुत ही ज्यादा मजबूती से पकड़ रहे। देखो इतना आंधी आता है, इतना कुछ होता है, बट वो जो पत्ते हैं वो पूरा का पूरा हिल रहा है आंधी से, बट वो जो पीटीओल है वो उसको मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है। तो ये जो रिजिडिटी होता है, दैट रिजिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा। एंड हु गेव आपका कोलेनकाइमा दैट रिजिड स्ट्रक्चर? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 3 लेयर्ड सेल वॉल। जो 3 आपके अलग अलग चीजें मिलता है सेल वॉल के अंदर, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। क्लियर। हम लोगों का बाकी है स्क्लेरेनकाइमा। तो वो एक डेड टिश्यू है जो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे छोटा सा टफ टॉपिक आपका बचा हुआ है इन योर प्लांट टिश्यूज, दैट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आप जो आज पढ़े हो उसको आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत रहता है तो मैं इसके साथ अपना नोट शेयर कर रहा हूं, तो आप नोट्स गो थ्रू करिए। और तब भी अगर कहीं पर किसी को दिक्कत लग रहा है तो ही और शी कैन टेक्स्ट मी, ठीक, इन व्हाट्सएप, और जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप लिख के भेज सकते हो मुझे। टिल देन, थैंक यू।